Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the properties of crystalline solids. लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके. Coming towards our article, and today's our article is the properties of crystalline solids. Properties of crystalline solids. Dear students, इसमें हम different properties, we will discuss different properties of crystalline solids. Number one, their geometry. All crystalline solids have definite geometry. They have definite geometry. They have fixed geometry. They contain atoms, molecules, or ions in regular three-dimensional pattern. What is three-dimensional pattern? X, Y and Z axis. If we see in a room, at each corner there are three dimensions: X axis, Y axis and Z axis. There in crystalline solids there are different things. Number one, these are called as edges. These are called as faces, and these are called as interfacial angles. Edges, faces and interfacial angles. So we can say that in crystalline solids their edges are inclined, जुड़े होते हैं in specific angles, and their edges, faces and angles, they are characteristic. Characteristic mean they are fixed. They contain their properties, characteristic, and their edges, faces and angles will remain same although they are crushed into small pieces. These are the properties of crystalline solid. Number two, second property will be the melting point. All crystalline solids have a sharp melting point, fixed melting point. They have a sharp melting point. For example, NaCl has melting point of 801 degree centigrade. It will quickly melt on 801 degree centigrade. On 800.9 it will not melt. It will only melt on 801 degree centigrade, and they are identified by their melting point. Now coming towards their third property, that is cleavage plane. Plane means surface, cleavage means breakdown. Cleavage means surface and cleavage means breakdown. Plane means surface. Now coming towards this property, so the next property is cleavage plane. Cleavage means surface, cleavage means breakdown, and plane means surface. The crystalline solids are inclined. Inclined mean जुड़े होना. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसे ईंटें होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर inclined to one another from specific planes.
जैसे ईंटें आपस में जुड़ जाती हैं किसी पॉइंट से, उन प्लेन्स को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज क्लीवेज प्लेन। उन प्लेन्स को बोला जाता है क्लीवेज प्लेन। जब इनको हैमर किया जाता है, ये इन प्लेन से ही ब्रेक डाउन होते हैं। एंड दीज प्लेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक टू देम। दीज प्लेन्स वेरी फ्रॉम क्रिस्टल टू क्रिस्टल, वेरी फ्रॉम crystal to crystal, from one crystal to another crystal. Mean for NaCl these are different, for copper sulfate these are different because their arrangement of atom is different. Now coming towards the fourth property, and fourth property is anisotropy. What is anisotropy? एनिसो मीन ना होना, आइसो मीन सेम, ट्रॉपी मीन प्रॉपर्टीज सेम ना होना। इनफैक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे चेंज विद डायरेक्शन, दे आर चेंज्ड विद डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट वेरिएशन of physical properties with direction is called as anisotropy. Anisotropy क्यों होती है? Why anisotropy exist? In fact अरेंजमेंट पे ये डिपेंड करती है। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, they depend upon arrangement. As we know that with direction क्या चेंज हो जाता है? with direction arrangement of atoms is changed. अरेंजमेंट चेंज होती है, उसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डायरेक्शन के साथ चेंज होती हैं? उनमें हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, कंडक्टिविटी, बिजली का चलना और हीट का चलना। नंबर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट को मोड़ना, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर 3 कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मीन हीट अब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाना, मोटे हो जाना। फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्लीवेज, मीन क्लीवेज भी एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनफैक्ट इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो है वो लेयर कोवलेंट सॉलिड होता है। अगर इसको ग्रेफाइट को 2 पोल्स के दरमियान रखे, इलेक्ट्रिक पोल्स के दरमियान, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, तो ग्रेफाइट जो है पैरेलल टू लेयर, पैरेलल टू लेयर ये क्या होता है? ये गुड कंडक्टर होता है। पैरेलल टू लेयर ये लेयर कोवलेंट सॉलिड होता है, और पैरेलल टू लेयर ये क्या है? गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यही ग्रेफाइट अगर हम वर्टिकली प्लेस कर देते हैं, वर्टिकली, तो वर्टिकली क्या होता है? ये वर्टिकली बैड कंडक्टर होता है। और बैड कंडक्टर होने की वजह क्या है? देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस मीन कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेयर्स के साथ बदलती है। पैरेलल टू लेयर गुड कंडक्टर, वर्टिकली बैड कंडक्टर, मीन डायरेक्शन के साथ इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। अब हम कहते हैं कि क्लीवेज भी एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। क्लीवेज
is an isotropic property. Why? Very important short question है. Cleavage is anisotropic property. हम ये जानते हैं नंबर 1 anisotropic property होती क्या है? Those properties which are changed with direction. तो क्लीवेज डायरेक्शन के साथ कैसे चेंज हो जाती है? हम ये इसकी एग्जांपल लेते हैं क्रिस्टल एंड सॉलिड को ड्रा करके. ये एक यूनिट सेल है, इसके बाद अगला यूनिट सेल इसके साथ लगा हुआ है, 2 यूनिट सेल लगे हुए हैं और यूनिट सेल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं थ्रू स्पेसिफिक प्लेन्स. अगर हैमर किया जाए तो इन्हीं प्लेन से ये ब्रेक हो जा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं और से हैमर किया जाए तो ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे. यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, वहाँ से ब्रेक नहीं होंगे. मीन ब्रेक डाउन की जो प्रॉपर्टी है, क्लीवेज की जो प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है. और जो डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाए वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दैट इज़ कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी. अब उसके बाद आ जाती है व्हाट इज़ कॉल्ड एज सिमेट्री यार हैबिट ऑफ क्रिस्टल. व्हाट इज़ कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, व्हाट इज़ कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल. हैबिट ऑफ क्रिस्टल शेप, जिस शेप के क्रिस्टल बनते हैं ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन. शेप इन विच क्रिस्टल्स ग्रो ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, उनके बनने के दौरान ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल. एंड हाउ crystals are formed? Formation of crystal or grown of crystals. crystals किस तरह से बनाए जाते हैं ये चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को मॉडरेट कूलिंग करेंगे, मॉडरेट कूलिंग, मीडियम कूलिंग करेंगे किसकी? ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन. उसकी एग्जाम्पल है सैचुरेटेड सोल्यूशन की. जो जलेबियों वाला होता है वो शीरा एक रखता है, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट बहुत ज़्यादा हो. उसकी मॉडरेट कूलिंग की जाए तो उससे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है. जिस शेप के ये बनते हैं उसको हैबिट ऑफ क्रिस्टल बोला जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl की ये हैबिट है, ये हमेशा कैसा बनता है? इसके जो क्रिस्टल प्रोड्यूस होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन को मॉडरेट कूल करने पर ये हमेशा क्यूबिकल क्रिस्टल बनाता है. और अगर कंडीशन चेंज कर दी जाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंडीशन चेंज कर दी जाए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंडीशन? अगर कंडीशन चेंज करती जाए मीन सैचुरेटेड सोल्यूशन में 10% यूरिया ऐड कर दिया जाए इन सैचुरेटेड सोल्यूशन. अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन में 10% यूरिया ऐड कर दिया जाए तो हैबिट चेंज हो जाती है और ये जो क्यूबिकल क्रिस्टल था ये कैसा बनने लग जाता है? ये नीडल शेप क्रिस्टल बनाने लग जाता है. इसका मतलब है हैबिट ऑफ क्रिस्टल चेंज हो जाती है बाय चेंजिंग द कंडीशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सिमेट्री. व्हाट इज कॉल्ड एज सिमेट्री? सिमेट्री मीन अगर क्रिस्टल एंड सॉलिड्स को हम 360 पे घुमाते हैं, इफ वी हैव ए क्रिस्टल एंड सॉलिड एंड दिस क्रिस्टल एंड सॉलिड इज रोटेटेड ऑन 360 डिग्री, ऑन 360 डिग्री, फिर क्या होगा? उनके एंगल्स, उनके एजेस and their faces are repeated, वो दोबारा आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? that is called as symmetry. When crystal and solids are rotated on 360 degree, their angle, faces and edges are repeated in a regular interval. And last one,
what are called elements of symmetry? Elements of symmetry. There are three elements of symmetry, parts of symmetry. Number one, their plane of symmetry, जिस प्लेन से वो टूटते हैं उसको बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। शार्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सिमेट्री, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। नंबर टू, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और नंबर थ्री दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। These are the three elements of symmetry. तो what is called as symmetry and what are the elements of symmetry, ये short question आता है। What is the habit of crystal, ये भी short question आता है। Justify cleavage is anisotropic property, ये भी short question आता है। Define anisotropy or give example. What is called as cleavage plane, ये शार्ट क्वेश्चन है। जो ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।